हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से फार्मूला कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एक तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एसिड इज इक्वल टू C अल्फा and the formula of alpha is under root Ka upon C whole under root. So if we put this formula into this, the concentration of H plus ion would be whole under root Ka into C. Similarly, concentration of OH minus ion for weak base will also be C alpha, and alpha will also equal to Kb upon C, that is C is here concentration, and OH minus ion concentration will be equal to Kb into C. Here Ka is the dissociation constant of acid, and Kb is dissociation constant of base, whereas C is the concentration which can be molarity or can be normality, whatever it may be, and alpha is the degree of dissociation. Now, taking one by one numerical related to this topic. Suppose calculate pH of 0.1 molar aqueous solution of acetic acid given है Kb is equal to 10 raised to power minus 5. Now what we have to find out pH. तो आपको pH निकालने के लिए कभी भी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, और दिस इज एसिटिक एसिड, इट मीन्स इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल H plus ion concentration is equal to C alpha. In this question alpha is not given, so in the form of Ka and concentration के terms में it will be Ka into C, and this is C, this is K. Put this value, whole under root K is 0.1 into 10 raised to power minus 5, and it would be 10 raised to power minus 6. And if we find out the under root of 10 raised to power minus 6, it would be 10 raised to power minus 3. The H plus ion concentration for this numerical is 10 raised to power minus 3, and now we can easily calculate the pH minus logarithm of H plus ion concentration and minus logarithm of 10 raised to power minus 3, and it would be 3. So the pH of this solution would be 3. Now question number 2, again calculate pH of 0.1 molar aqueous solution of ammonia, and given that pKb of this solution is 5. तो अगेन यू हैव गिवन कंसंट्रेशन और पीकेबी गिवन है, पीकेबी को केबी में चेंज कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट किसी के साथ भी पीके लग जाता है, पी लग जाता है, इट मींस द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर. तो पीकेबी मींस माइनस लॉगरिथम ऑफ केबी. पीकेबी इज 5 माइनस लॉगरिथम ऑफ केबी, एंड लॉग वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा -5. तो केबी वुड बी माइनस एंटी लॉग ऑफ -5, और ये होल नंबर का जब भी एंटी लॉग देखते हैं तो 10 की पावर में चला जाता है, तो के बी वुड बी 10 रेज़ टू पावर -5. तो
तो यू हैव Kb 10⁻⁵, ये कंसंट्रेशन दे रखे है। बट अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है, बट अमोनिया का सॉल्यूशन इन वाटर इज बेसिक इन नेचर, बट aqueous solution of ammonia is ammonium hydroxide. It means in the water it will produce OH minus ion concentration. So the OH minus ion concentration of ammonia in aqueous medium would be C alpha, but in this question you have not given C alpha, alpha की वैल्यू नहीं दे रखी, but Kb is you have been find out earlier, and C. And Kb की वैल्यू है 10⁻⁵ and C is 0.1. Again 10⁻⁶, 10⁻³ मोलार। तो यू POH निकाल लिया आपने, माइनस लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻³ मीन्स 3, बट दिस इज द POH and pH plus POH is equal to 14 होता है at 25 डिग्री सेल्सियस। सो pH will be 14 minus 3 11। तो बेसिक हो गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट pH of 0.1 molar solution of weak acid HA। कोई HA एसिड है और वीक है, उसका 0.1 मोलर कंसंट्रेशन रखे है। इफ Kb of A माइनस आयन इज 10⁻⁹, और आपको Kb दे रखा है A माइनस आयन का, इसका ना डिसोसिएशन आपको A माइनस आयन का दे रखा है, ना कि HA का। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो यू हैव बीन गिवन C इज इक्वल टू 0.1 मोलार, आपको Kb दे रखा है कॉन्जुगेट बेस का, क्योंकि HA जब भी रिएक्ट करेगा, HA जब भी एक्वस मीडियम में जाएगा, it would produce A minus ion plus H plus ion. यदि if it is an acid which is given in the question, तो it would produce its conjugate base. And you have been given Kb of A minus, it means Kb of conjugate base, जो कि conjugate base है, वो आपको दे रखा 10⁻⁹। And at 25 डिग्री सेल्सियस we have already discussed the important formula list. Ka into Kb is equal to Kw, that is 10⁻⁴ at 25 degree Kw. Kb is given 10⁻⁹, and in this way you can easily calculate the Ka. Ka would be 10⁻⁴ upon 10⁻⁹, and it would come 10⁻⁵. So you have C, you have Ka, and in this way you can find out the pH. So H plus ion concentration again C alpha, and in other word Ka into C. अब now we will consider Ka, not Kb, because Kb is given for the conjugate base. ठीक है। So Ka की वैल्यू we have find out 10⁻⁵, and concentration in this question you have given 0.1 molar, that is 10⁻⁶ का अंडर रूट, and it would be 10⁻�3, and the pH will be minus logarithm of H plus ion concentration, pH is equal to minus logarithm H plus ion concentration, and it would be 3. तो pH again इस solution का 3 के इक्वल आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट pH of 0.1 molar solution of
weak acid Ha whose Ka is equal to 10 raised to power minus 21. So solution, again concentration दे रखे 0.1 मोलार, Ka दे रखे 10 raised to power minus 21. We will find out the weak acid है, तो H plus की concentration we will calculate easily. C alpha, alpha is not there, so Ka into C, and Ka की वैल्यू 10 raised to power minus 21 और C की वैल्यू 0.1, that is 10 raised to power minus 22 under root 10 raised to power minus 11. तो H plus की concentration you have 10 raised to power minus 11. एंड ये H प्लस आयन फ्रॉम एसिड है, H प्लस आयन फ्रॉम एसिड जो कि H है, दैट इज 10 raised to minus 11. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इफ concentration of H plus ion acid is less than 10 raised to minus 9, because acid H plus ion की concentration acid की 10 raised to minus 5 से 10 raised to minus 9 के बीच में होती है, देन हम H plus ion acid के और H plus ion वाटर के कैलकुलेट करते हैं, पूरा सम करके फिर आंसर निकालते हैं. लेकिन H plus ion acid का 10 raised to minus 9 से कम हो जाए तो हम फिर H plus ion की जो एसिड से निकले हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं और वाटर के H plus ion को कंसीडर करते हैं. यदि H plus ion एसिड के 10 raised to minus 5 से ज्यादा हो तो फिर हम H plus ion वाटर से जो प्रोड्यूस हुए उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिर्फ H plus ion एसिड को ही कैलकुलेट करते हैं. तो यहां पर जो हमारा केस बन रहा है H 10 raised to minus 9 से कम जा रहा है, 10 raised to minus 11. इट मीन्स वी विल neglect the H plus ion concentration from acid. ठीक है, and we only consider the H plus ion from water, and we already know that at 25 degrees Celsius H plus ion concentration from water is equal to the 10 की power minus 7 molar. So pH is equal to minus logarithm of H plus ion concentration, लेकिन यहाँ पे वाटर का ही लेके चलेंगे, उसको तो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो pH would be 7. तो ये pH 7 है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 7 है तो एसिड, लेकिन इससे थोड़ा सा हल्का सा कम आएगा तो उसे नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो हल्का सा भी कम को, तो पीएच ऑफ द एसिड, ऐसे वीक एसिड्स जिनमें की पीएच के बहुत ज्यादा हाई होती है, वो बहुत ज्यादा लो होती है, सॉरी बहुत ज्यादा लो है, ऐसे की एसिड्स की पीएच ऑलमोस्ट 7 के आसपास होती है. तो इट इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और एक वीक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 5. द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलिन. एनिलिन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि आपको याद हो तो मैंने आपको सारे कंपाउंड लिखे थे. दिस इज बेंजीन के ऊपर NH2. सारे जितने भी बेंजीन के ऊपर कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो या तो वीक एसिड होते हैं या वीक बेस होते हैं. यदि नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे तो वीक बेस, यदि उसके कंपाउंड होंगे COH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होंगे तो वीक एसिड्स. ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन इज 4.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10. आयनाइजेशन कांस्टेंट में KB यू हैव गिवन, दिस इज KB बिकॉज एनिलीन इज अ बेस. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 raised to power minus 3 मोलार एनिलीन सॉल्यूशन. इसका C भी दे रखा है आपको, पहला पार्ट. सेकेंड पार्ट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट,
calculate the degree of dissociation or you can say ionization of aniline in the solution. And third point is calculate ionization constant of its conjugate acid, constant, that is Ka of the conjugate acid. That's it. So you have to find a Ka, alpha, in this case alpha, in this case pH. So first of all we will find out the pH. Because aniline is the base, it would always create OH minus ion concentration. So solution, we have Kb जो कि 4.3 into 10 raised to power minus 10 है. We have concentration C 10 raised to power minus 3 molar, and because aniline is a basic in nature, it would create OH minus ion, and OH minus ion C alpha होता है, and हमें K और इसके टर्म में तो अंडर रूट Ka into C, Kb into C, and Kb into C means 4.3 into 10 की power minus 10 into 10 की power minus 3 का whole under root, and you can easily calculate the OH minus ion concentration for this 10 की पावर माइनस 13 आ गया. तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इसका अंडर रूट जो आपके पास आएगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, इट वुड बी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, and it will be 6.56 into 10 raised to power minus 7 molar. So the OH minus ion concentration is this. Hope you understand this. This is the under root value. Now OH minus ion की concentration निकल गई, बट अभी pH निकालना बाकी है. अब pH निकालेंगे, लेकिन इससे pOH निकलेगा. So pOH value for this minus logarithm of OH minus ion concentration minus logarithm of 6.56 into 10 की पावर minus 7. यदि हम इसको log लगाएं, माइनस बाहर ले लें, log a into b, तो log 6.56 और ये प्लस log 10 raised to power minus 7 माइनस log 6.56 माइनस 7 log 10 हो जाएगा, तो माइनस 7 आ जाएगा. 6.56 का जो अंडर रूट होता है, 6.56 का अंडर रूट, यदि आपको लॉगरिथम मैंने आपको देखना सिखाया है, तो लॉग टेबल के अंदर 6.56 हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसको लॉग के अंदर समथिंग ये 0. ये जो 6.2 के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारी लॉग की वैल्यू. लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.8451. तो लॉग 6.56 6.5 की वैल्यू, तो लॉग 6.56 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 6 दैट इज लॉग 2 into 3, log 2 plus log 3. ठीक है, log 2 के वैल्यू होगी 0.3010 और log 3 की वैल्यू होगी 0.4771. इट मीन्स 18770. दिस इज अ log 6 वैल्यू. ये log 6 की वैल्यू आ गई. अब log 6.56 यानी 7 से ऊपर, 7 से कम होनी चाहिए और 6 से बड़ी होनी चाहिए. तो 7 और 8 के बीच में आ रही है लगभग. तो हम
इस वैल्यू को 0.8 के आसपास लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखी है वो 0.8000 लिख दी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली माइनस, और इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट और माइनस प्लस। तो 7 में से 0.8 गए तो 7 में से 0.8 गए तो इट वुड बी 6.2। इज इट क्लियर? तो दिस इज द पीओएच, बट दिस इज नॉट योर आंसर। यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट पीएच। तो पीएच वुड बी पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये आप मेंशन कर दो, एंड pH will be 14 minus 6.2 and it would be, यदि 7 होता 7, 8 point और 7.8। तो pH of aniline solution will be approximately 7.8 के आसपास, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा। अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड अल्फा को फाइंड आउट कैसे करना है? वी नो दैट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। H प्लस आयन या यू कैन से OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो C अल्फा। अब OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यू हैव बीन ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट बैक। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, तो 6.56 इंटू 10⁻⁻⁷ ये ऑलरेडी कैलकुलेट है। कंसंट्रेशन हमें मालूम है, C हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें क्वेश्चन में C जो कंसंट्रेशन है C की वैल्यू 10⁻³ एंड अल्फा। सो अल्फा वुड बी 6.56 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10⁻³ तो ये -3, तो ये हो गया 6.56 इंटू 10⁻⁴ जो है अल्फा। एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फाइंड आउट द केबी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। A माइनस का केबी निकालना है विच इज अ कॉन्जुगेट बेस। तो वी वेरी वेल नो दैट Ka किसी भी एसिड का Ka एंड Kb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, या इन अदर वर्ड Kb किसी बेस का और उसका कॉन्जुगेट एसिड का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज Kw होता है। इट मीन्स 10⁻⁴, बट एट 25 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू पुट की जाएगी। Kb यू हैव टू फाइंड आउट। K यू हैव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन 4.3 इंटू 10⁻⁻10 and in this way you can easily find out Kb 10⁻⁴ upon 4.3 into 10⁻⁻10 and whatever may be the value by the calculation you will got 2.32 into 10⁻⁵. Hope you understand this numerical. This is a very important numerical. So next, अब हम ने कुछ एसिड वीक एसिड के न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब सपोज यू हैव गिवन 2 एसिड्स और उनके मिक्सचर्स के आपको पीएच कैलकुलेट करने हैं। तो रिमेंबर कुछ फार्मूले मैं लिख देता हूं। मिक्सचर of weak acid. Acids. If you have been given 2 or more than 2 weak acids, उनके मिक्सचर के पीएच निकालने तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू की होल टोटल जो सारे के सारे एसिड हैं, इट वुड बी Ka1 C1 जो एक कोई एसिड होगा प्लस Ka2 C2 प्लस KAN CN। जितने भी एसिड होंगे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट, उनकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन
उनकी सबके मल्टीप्लिकेशन का सम करके और उनका होल अंडर रूट निकाल देंगे तो यू विल गेट गॉट द आंसर ऑफ H+N concentration of that mixture of weak acids, and with the help of H+N you can find out the pH. Similarly, mixture of weak bases, वीक बेसिस के मिक्सचर हम डालें तो द फार्मूला ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कोई बेस से OH माइनस आयन क्रिएट करेगा सॉल्यूशन में. फार्मूला विल रिमेन एज इट इज. KB बस B लग जाएगा 1C1 प्लस KB2C2 प्लस KBnCN, and in this way you can easily calculate the H+N OH minus and concentration of weak mixture of weak acid and weak bases. This is a total, and if you got the H+N concentration you can easily calculate the pOH and then pH. So taking the example of these type of questions, suppose we have been given 0.1 molar aqueous solution of weak acid HA having dissociation constant Ka is 10 raised to the power minus 5. Another weak acid HB having concentration in aqueous solution is 0.01 molar and its dissociation constant Ka would be 10 raised to the power minus 6. If both of these weak acids mixed together, find the pH of resulting solution. Resulting solution का pH आपको find out करना है. So because this is the question of weak acid, so we can easily find the H+N total, and by applying the formula which I written above, that Ka1C1 प्लस Ka2C2, क्योंकि दो ही एसिड है तो दो लिख दिया हमने. पहले वाले का K -5, उसका C दे रखा है 10 की पावर -1. दूसरे का K है 10 रेज़ टू पावर -6 और उसका C दे रखा है 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -8. इन दोनों के सम का आपको होल अंडर रूट निकालना है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द 10 रेज़ टू पावर -6 कॉमन, 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर -2. सो 10 रेज़ टू पावर -6 का तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू होल अंडर रूट 1.01, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब हो गया. इज इट क्लियर? Is this clear? And the whole under root value of 1.01 would be almost 1 के इक्वल होगी, तो 10 की पावर -3 H+N concentration आ गई total. So pH will be minus logarithm of H+N concentration total and it would be 3. Hope you understand this.
जब भी हम दो वीक एसिड के मिक्सचर को मिक्स करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है, या वीक बेसिस का करेंगे, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द pH ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और करते हैं इसी के साथ साथ, इनके साथ साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजीज और करते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पॉलीप्रोटिक एसिड, या इन अदर वर्ड पॉलीबेसिक एसिड्स। पहली चीज, पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स H+ आयन एसिड। ऐसे एसिड जो बहुत एक से ज्यादा H+ आयन डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, उन्हें पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। दोज एसिड्स which can donate n number of protons, that is H+ ions, in solution are called पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल एनी H2X, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, इज इट क्लियर? इट प्रोड्यूस H+ आयन एक्वस प्लस HX- एक्वस, अगेन HX- एक्वस का सॉल्यूशन बनाया, इट विल अगेन प्रोड्यूस H+ आयन एक्वस एंड X- एक्वस, X2- एंड X- एक्वस। सो दिस इसका K1 होगा, इसका K2 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन ये स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन होंगे, एक साथ नहीं देंगे। तो इट मीन्स दिस इज द डाइप्रोटिक एसिड, दो H+ आयन डोनेट के, तो इट मीन्स दिस इज डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। सिमिलर को 3 देगा ट्राइप्रोटिक एसिड, 4 देगा टेट्राप्रोटिक एसिड, ठीक। तो व्हाट आई वांट टू डिस्कस यू, आई वांट टू नो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 और डिसोसिएशन Ka2 फॉर द पॉलीप्रोटिक एसिड्स वुड बी सेम, डिफरेंट? ये डिफरेंट होंगे तो कैसे होंगे? ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, या ये ज्यादा होगा, ये कम होगा? ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड्स Ka1 जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट था न्यूट्रल से, दैट वुड बी हाईएस्ट, उसका Ka2, उसका Ka3 एंड सो ऑन। इसका लिए ये कम होते चले जाते हैं। क्वेश्चन उठता वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह है, वेन एवर फर्स्ट H+ आयन is donated by polyprotic acid, it would be donated from neutral compound. Now after donating H+ ion, one H+ ion, it become negatively charged, it acquire negative charge, and after acquiring negative charge it is very difficult for removing H+ ion, because negative charge always attract positive charge towards itself. तो H+ आयन को निकलने नहीं देगा नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल तो H+ आयन को निकलने देगा एक, लेकिन अब नेगेटिव जैसे चार्ज आएगा वो निकलने नहीं देगा।
And as negative charge increases, removal of H plus ion become more and more difficult. तो remember, जो first H निकला from the polyprotic acid, it is removed from neutral polyprotic acid. It is removed from neutral polyprotic acid. But after removal of first H plus ion, the polyprotic acid acquire negative charge, and it is very difficult for removing H plus ion. Hence dissociation will be difficult, और dissociation difficult हो जाएगा तो K की वैल्यू कम हो जाएगी. तो रिमूव मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन रीजन. It is due to the reason that it is always more difficult to remove a positively charged species, that is H plus ion in this case, from negative charged ions as compared to a neutral molecule. Actually, there is a strong electrostatic, मैंने आपको जो समझाया उसी को मैं सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं. फोर्स of attraction between H plus ion and an ion with which it is present, जिसके साथ वो प्रेजेंट है. As a result, removal of proton from the monovalent, मोनो मतलब सिंगल नेगेटिव चार्ज वाला, मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन is quite difficult and is even more difficult to remove the same from divalent anion, and it is more difficult from difficult to remove from divalent, मतलब जिसका दो नेगेटिव चार्ज है उसमें तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, वैलेंट एनायन नेगेटिव चार्ज. thus dissociation constant will be decreases. इसका मतलब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, उसका सारे कम होते चले जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Is it clear? So this is what the polyprotic acid. ऐसे एम्फीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आर इंपॉर्टेंट. एम्फीप्रोटिक एसिड्स, एम्फीप्रोटिक एसिड. एम्फीप्रोटिक एसिड्स वो होते हैं
जो H प्लस आयन ले भी सकते हैं और H प्लस आयन दे भी सकते हैं. These are those acids which can donate as well as accept H plus ion in the solution. For example, HCO3 माइनस आयन एक्वस मीडियम में हम लेंगे इसको, तो ये सब अपने H प्लस आयन रिमूव कर देगा. इट रिमूव H प्लस आयन एंड प्रोड्यूस CO3 2 माइनस आयन. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह. सिमिलरली इन एक्वस मीडियम इट कैन एक्सेप्ट ऑल्सो H प्लस आयन. इसने H प्लस आयन ले लिया एंड व्हेन इट एक्सेप्ट H प्लस आयन इट फॉर्म H2CO3. तो यह बेस की तरह बिहेव कर रहा है. तो फॉर दिस रिएक्शन इट बिहेव लाइक एन एसिड. फॉर दिस रिएक्शन इट बिहेव लाइक अ बेस. तो in the aqueous medium HCO3 minus ion behave like acid as well as base. That is why this is called amphiprotic acid. तो इनको amphiprotic acids के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कि हाउ डू वी कम टू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड. किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ कैसे पता लगाएं, किसी भी एसिड का स्ट्रेंथ क्या होता है. तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, तो कोई भी दो एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में कंपैरिजन. तो कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड कि कोई भी दो एसिड स्ट्रॉन्ग, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है. तो हेडिंग ऑन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस. किसी भी दो एसिड दो बेसिस के स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करनी है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं सॉल्यूशन में, इसलिए उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर करना बड़ा डिफिकल्ट है. पहली बात तो मैं यहां बता रहा हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इज 4.3 into 10 raised to power minus 10, and in this way you can easily find the kV 10 raised to power minus 14 upon 4.3 into 10 raised to power minus 10, and whatever may be the value by the calculation you will got 2.32 into 10 की power minus 5. Hope you understand this numerical. This is a very important numerical. So next, अब हम ने कुछ एसिड वीक एसिड के न्यूमेरिकल सॉल्व किए. अब सपोज यू हैव गिवन टू एसिड्स और उनके मिक्सचर्स के आपको पीएच कैलकुलेट करने हैं. तो रिमेंबर कुछ फार्मूले मैं लिख देता हूं. मिक्सचर ऑफ weak acid. Acids. If you have been given two or more than two weak acids, उनके मिक्सचर के पीएच निकालने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू की होल टोटल जो सारे के सारे एसिड हैं, इट वुड बी Ka1C1 जो एक कोई एसिड होगा प्लस Ka2C2 प्लस KAnCN. जितने भी एसिड होंगे उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट, उनकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सबके मल्टीप्लिकेशन का सम करके और उनका होल अंडर रूट निकाल देंगे. तो यू विल गॉट द आंसर ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, एंड विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन you can find out the pH. Similarly, mixture of weak bases, वीक बेसिस के मिक्सचर हम डालें
तो द फार्मूला ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, कोई बेस से OH माइनस आयन क्रिएट करेगा सॉल्यूशन में, फार्मूला विल रिमेन एज इट इज, के बी बस बी लग जाएगा 1C1 प्लस KB2C2 प्लस KBnCn, and in this way you can easily calculate the H plus and OH minus and concentration of weak mixture of weak acid and weak bases. This is a total, and if you got the H plus and concentration, you can easily calculate the pOH and then pH. So taking the example of these type of questions, suppose you have been given 0.1 molar aqueous solution of weak acid HA having dissociation constant Ka is 10 raised to the power minus 5. Another weak acid HB having concentration in aqueous solution is 0.01 molar and its dissociation constant Ka would be 10 raised to the power minus 6. If both of these weak acids mixed together, find the pH of resulting solution. Resulting solution का pH आपको find out करना है. So because this is the question of weak acid, so we can easily find the H plus ion total, and by applying the formula which I written above, that Ka1C1 plus Ka2C2, क्योंकि दो ही एसिड है तो दो लिख दिया हमने. पहले वाले का K -5, उसका C दे रखा है 10 की पावर -1. दूसरे का K है 10 रेज़ टू पावर -6 और उसका C दे रखा है 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर -8. इन दोनों के सम का आपको होल अंडर रूट निकालना है. सो यू कैन इजीली फाइंड आउट द 10 रेज़ टू पावर -6 कॉमन, 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर -2. सो 10 रेज़ टू पावर -6 का तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू होल अंडर रूट 1.01, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर -2 का मतलब हो गया. इज इट क्लियर? Is this clear? And the whole under root value of 1.01 would be almost 1 के इक्वल होगी, तो 10 की पावर -3 H plus ion concentration आ गई total. So pH will be minus logarithm of H plus ion concentration total and it would be 3. Hope you understand this. So, जब भी हम दो वीक एसिड के मिक्सचर को मिक्स करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पता है, या वीक बेसिस का करेंगे, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस. अब
कुछ टर्मिनोलॉजीज और करते हैं इसी के साथ साथ, इनके साथ साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजीज और करते हैं। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं? पॉलीप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक पॉलीबेसिक एसिड भी बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पॉलीप्रोटिक एसिड या इन अदर वर्ड पॉलीबेसिक एसिड्स। पहली चीज, पॉली मीन्स मैनी, प्रोटिक मीन्स H प्लस आयन एसिड। ऐसे एसिड जो बहुत एक से ज्यादा H प्लस आयन डोनेट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, उन्हें पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड कहते हैं। दोज एसिड्स विच कैन डोनेट n number of protons, that is H plus ions, in solution are called polyprotic or polybasic acids. For example, NaH2x, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला, इज इट क्लियर? इट प्रोड्यूस H प्लस आयन एक्वस प्लस HX माइनस एक्वस, अगेन HX माइनस एक्वस का सॉल्यूशन बनाया, इट विल अगेन प्रोड्यूस H प्लस आयन एक्वस and X minus aqueous, X2 minus and X minus aqueous. So these इसका K1 होगा, इसका K2 होगा, क्योंकि डिसोसिएशन ये स्टेप बाय स्टेप डिसोसिएशन होंगे, एक साथ नहीं देंगे। तो इट मीन्स दिस इज द डाई या डाई प्रोटिक एसिड, दो H प्लस आयन डोनेट के, तो इट मीन्स दिस इज डाई प्रोटिक एसिड, डाई प्रोटिक एसिड। सिमिलर को 3 देगा ट्राइप्रोटिक एसिड, 4 देगा टेट्राप्रोटिक एसिड, ठीक। तो व्हाट आई वांट टू डिस्कस यू, आई वांट टू नो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 और डिसोसिएशन Ka2 फॉर द पॉलीप्रोटिक एसिड्स वुड बी सेम, डिफरेंट? ये डिफरेंट होंगे तो कैसे होंगे? ये ज्यादा होगा ये कम होगा, या ये ज्यादा होगा ये कम होगा? Okay. So always remember, for polyprotic acids, Ka1 जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट था न्यूट्रल से, दैट वुड बी हाईएस्ट, उसका Ka2, उसका Ka3 एंड सो ऑन। इसका ये कम होते चले जाते हैं। क्वेश्चन उठता वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यह है, वेन एवर फर्स्ट H प्लस आयन इज डोनेटेड बाय पॉलीप्रोटिक एसिड, इट वुड बी डोनेटेड फ्रॉम न्यूट्रल कंपाउंड. नाउ आफ्टर donating H plus ion, one H plus ion, it become negatively charged. It acquire negative charge, and after acquiring negative charge, it is very difficult for removing H plus ion, because negative charge always attract positive charge towards itself. तो H plus ion को निकलने नहीं देगा नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रल तो H plus ion को निकलने देगा एक, लेकिन अब नेगेटिव जैसे चार्ज आएगा वो निकलने नहीं देगा. And as negative charge increases, removal of H plus ion become more and more difficult. So remember, जो first H निकला from the polyprotic acid, it is removed from neutral polyprotic acid. It is removed from neutral polyprotic acid. But after removal of first H plus ion, the polyprotic acid
acquire negative charge, and it is very difficult for removing H plus ion, hence dissociation will be difficult, और dissociation difficult हो जाएगा तो K की वैल्यू कम हो जाएगी. तो रिमूव, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, एक्सप्लेनेशन, रीजन. It is due to the reason that it is always more difficult to remove a positively charged species, that is H plus ion in this case, from negative charged ions as compared to a neutral molecule. Actually, there is a strong electrostatic, मैंने आपको जो समझाया उसी को मैं सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H plus ion and anion with which it is present, जिसके साथ वो प्रेजेंट है. एज अ रिजल्ट, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द मोनोवैलेंट, मोनो मतलब सिंगल नेगेटिव चार्ज वाला, मोनोवैलेंट नेगेटिव आयन is quite difficult and is even more difficult to remove the same from divalent anion, and it is more difficult from difficult to remove from divalent, मतलब जिसका दो नेगेटिव चार्ज है उसमें तो और डिफिकल्ट हो जाएगा वैलेंट एनायन नेगेटिव चार्ज. दस डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी डिक्रीजेस. इसका मतलब फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होगा वो हाईएस्ट होगा, उसके सारे कम होते चले जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Is it clear? So this is what the polyprotic acid. ऐसे एम्फीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, ये कुछ टर्मिनोलॉजी आर इंपॉर्टेंट. एम्फीप्रोटिक एसिड्स, एम्फीप्रोटिक एसिड. एम्फीप्रोटिक एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस आयन ले भी सकते हैं और H प्लस आयन दे भी सकते हैं. दीज आर those acids which can donate as well as
accept H plus ion in the solution. For example, HCO3 minus ion. एक्वस मीडियम में हम लेंगे इसको, तो ये सब अपने H प्लस आयन रिमूव कर देगा. इट रिमूव H प्लस आयन एंड प्रोड्यूस CO3 2 माइनस आयन. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह. सिमिलरली इन एक्वस मीडियम इट कैन एक्सेप्ट ऑल्सो H प्लस आयन. इसने H प्लस आयन ले लिया एंड व्हेन इट एक्सेप्ट H प्लस आयन इट फॉर्म H2CO3. तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है. तो फॉर दिस रिएक्शन इट बिहेव लाइक एन acid. For this reaction, it behave like a base. So in the aqueous medium, HCO3 minus ion behave like acid as well as base. That is why this is called amphiprotic acid. तो इनको amphiprotic acids के नाम से जाना जाता है.